Bismillahirrahmanirrahim. We are formally starting our session about the Islamic finance, introduction to Islamic banking and finance. As already communicated that the most important document is the course outline, and according to the course outline, we have to study in our today's session uh, is Murabaha and Musawama. So, Murabaha and Musawama is the starting point of today's discussion and this recording, inshallah. So, first of all, we have to see the points that are the part of your this section or this week focus. This week focus points are Murabaha and Musawama. And sub points are also here, but I also want to draw your attention on the pre-reading and post-reading task as per your course outline. Pre-reading task is chapter 13, Murabaha of MBGIB. MBG means Mizan Bank Guide to Islamic Banking. And post reading is Sharia standards issued on Murabaha by AOF. I want to inform that how can you find already I provided the book and we can find by internet the Mizan Bank Guide of Islamic Finance, but rather than whole book reading you have to focus on your today this week session. So in this section, in current week folder of LMS, you can see the book chapter. If you open this one, so you can find specifically the chapter related to your current week focus, Murabaha. Mm, By the name of Musawama, there is no specific chapter in this book, but this is also there is also term Musawama is the part of this chapter, so we can discuss Musawama by the help of this chapter also. So chapter 13 is your pre-reading, and also post-reading was Sharia standards issued on Murabaha by AOF. You can find this content by the internet directly, but I also supported you with the help of your LMS. But I want to provide you the method. You can find any Sharia standard directly. So I copied this portion, and after copying, I will paste this in a browser. Currently, it is Google. Just I copied and pasted, and you can find this is SS8 Murabaha. It means Sharia standard. Double S mean Sharia standard. Uh, Standard number 8, because there are 60 standards available currently, Alhamdulillah, and you can find this one. So this is the way you can find the pre-reading content and post-reading content by the internet free of cost easily. Currently it is uploading, so we can see it later, inshallah. It will be uploaded, inshallah, rather than. So first of all, uh, as we started our discussion, course outline. This is understand Murabaha.
or there is a word bay'ul amana. So what is bay'ul amana? To understand this word, we need to understand some diagram. It will support us to understand the concept of bay'ul amana. With the help of this PowerPoint, we can understand better, inshallah. So now we are going to start our new section. Before this, before this week, we have discussed during the previous week the more theoretical part of Islamic finance. We have discussed Islamic economic system. We have discussed prohibition in Sharia. According to Sharia, prohibition in Islamic banking, prohibitions in the Fiqh al-Muamalatul Maliyah, and we also discussed in detail Islamic law of contract, including sale contract and so on. Now we are moving towards the practical side of Islamic finance. Practical side of Islamic finance means we can discuss the products of Islamic banks. We can discuss the concept using practically in Islamic banking, and also we can see that the how Islamic banks providing these concept towards their uh, clients. So not only conceptual, but also we will discuss. Please mute your mics. Okay. So Islamic mode of financing, we will discuss murabaha, but what is murabaha? Murabaha is a one of the Islamic mode of finance. We can say Islamic way of financing, Islamic method of financing. Murabaha is one of the Islamic method of financing. Similarly, musawama is also the topic of our current week. So this is also Islamic method or Islamic way of financing. So Islamic mode of financing we can describe by the wordings of mode of financing will be proposed according to the need of customer and nature of business. Already mentioned that mode of financing mean method or way of financing. So there are multiple mode of financing. We will discuss week by week different mode of financing. So what are the basis of providing Islamic mode of financing? So application of trade-based mode of finance, there are actually multiple types. You can see by this picture, this diagram, this figure that actually customers have multiple needs, especially specifically in current week topic Murabha and Musawama. This is mostly for the business customer, mostly, especially Murabha and Musawama somehow in durable financing, individual finance can also be done by the Musawama, but specifically Murabaha is more towards the business financing. So if we have as an Islamic banker, as an Islamic banking professional, we have the customer which have need of payments or cash or funds. So we will analyze that what is the nature of the
fund, what is the nature of requirement, what is the nature of need. It can be either revenue expenditure or capital expenditure. So, revenue expenditure, anyone can explain what is the difference between revenue expenditures and capital expenditure. We also say, we also can explain OPEX and CAPEX. Capital expenditure can be called CAPEX, and revenue expenditures can be called OPEX, operational expenditures. So anyone who can write in the chat box what is the difference between the uh, CAPEX and OPEX. So by this way, by this chat, we can make it this session as a uh, more convocation. क्या डिफरेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में? एनीवन हैव एनी आइडिया? नो इशू, रॉन्ग और राइट, नो इशू। दिस इज टाइप ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या आपके माइंड में कुछ है इस हवाले से? अपना माइक भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बोलना चाहें तो। पाबंदी नहीं है बोलने पे। अच्छा, चलें, कोशिश करें थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहें। सर, जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेनली शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को कैटर करता है, दिस इंक्लूड्स वर्किंग कैपिटल और डे टू डे सन्डे एक्सपेंसेस। ऑन द अदर साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस को कैरी आउट फॉरवर्ड करता है, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, बाइंग सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और एनी अदर थिंग्स लाइक रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स, एनी अदर एक्सपेंस। चले, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एक्चुअली जो है, अच्छा, अली रिजवान की तरफ से भी आए हैं जवाब, इसको भी देख लेते हैं। रेवेन्यू शॉर्ट टर्म, कैपिटल लॉन्ग टर्म। हम इसको कह सकते हैं बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर के नतीजे में आपके फिक्स एसेट्स वजूद में आते हैं आमतौर पर। सही, आपके फिक्स एसेट्स वजूद में आते हैं जो कि किसी एक अकाउंटिंग पीरियड, किसी एक साल तक महदूद नहीं होते, जिसके फायदे, जिसके बेनिफिट्स, द बेनिफिट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मोर देन वन ईयर, मोर देन वन अकाउंटिंग साइकिल। तो जैसे मिसाल के तौर पर ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा तो वो एक साल में ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि मल्टीपल ईयर्स तक हमें जो है वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, हम उससे जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। ऑन लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये सही। ईमान फातिमा की तरफ से भी रिस्पांस आया, तो अच्छी बात है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हुए आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्सेज आएंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली क्रिएट्स फिक्स एसेट्स, आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स वजूद में आते हैं इसके ज़रिए, जिस तरह के बिल्डिंग, जिस तरह की प्रॉपर्टी, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट्स, सो ऑन। जबकि उसके मुकाबले में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये आपके नॉर्मली जो है वो विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर से रेलेवेंट होते हैं, और जैसा कि बताया गया। अब हम अगर राइट हैंड से शुरू करते हैं, कैपेक्स की बात करते हैं पहले, तो फिर हमें सबसे पहले ऑफर्ड मोड जो है इसमें क्या होता है, रेंटल एंड पार्टनरशिप बेस्ड। ये हम इसमें पढ़ेंगे इजारा, मिड टर्म से पहले इंशाल्लाह इजारा कंप्लीट हो जाएगा, और मिड टर्म के बाद जो है पार्टनरशिप बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस होंगे, मुशारका और डिमिनिशिंग मुशारका वगैरह, खासतौर पर डिमिनिशिंग मुशारका। तो वो मोड ऑफ फाइनेंस हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में काम आते हैं। अच्छा, अगर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन साइड पे हम बात करें, तो ये जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल्स के लिए, नॉन बिजनेस पीपल के लिए भी होते हैं नॉर्मली। जैसे आपका होम फाइनेंस है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो सकता है। जैसा आपकी गाड़ी का फाइनेंसिंग है, जिसको आप ऑटो फाइनेंस बाज बैंकों में कहते हैं, बाज बैंकों में कार फाइनेंस कहते हैं, तो वो भी जो है वो आपका इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। तो उसके लिए इजारा या डिमिनिशिंग मुशारका जैसे मोड ऑफ फाइनेंस हम यूज करते हैं, जो कि आगे आने वाले वीक्स में कवर होंगे। अभी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, तो उसमें या तो हमें परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल करना होगा, कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो उसके लिए तरीक़ेकार है, ऑफर्ड मोड है, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू,
उसका नाम है मुराबाहा। सही। आज की जो हमारी फोकस है, हमारे इस वीक का जो फोकस है, तो वो मुराबाहा जो है वो परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल के लिए मुराबाहा हम इस्तेमाल करते हैं। फिर फर्दर अगर हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो जो एंटिटी है, कस्टमर है, जो फाइनेंसी है, वो या तो ट्रेडर होगा या मैन्युफैक्चरर होगा, या दूसरे अल्फाज में उसको जस्ट बेचने के लिए नीड होगी, या जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो अगर तो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सूरत में हमारे पास प्रिफर्ड मोड ऑफ फाइनेंस है इस्तिस्ना, जो कि नेक्स्ट वीक में हम सलम और इस्तिस्ना के अंडर में कवर करेंगे। तो इस्तिस्ना जो है वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मेक टू ऑर्डर वालों के लिए, जो कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, उनके लिए कारामद चीज़ है। इसी तरह ट्रेडिंग के लिए अगर गुड्स डिलीवरी फ्यूचर में है, तो उस सूरत में सलम मोड ऑफ फाइनेंस होगा, जो कि सलम और इस्तिस्ना जो है वो अगले वीक में कवर होंगे। और फिनिश गुड्स, बाज औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर के पास कोई चीज तैयार हालत में मौजूद होती है। कस्टमर के पास कोई चीज तैयार हालत में मौजूद होती है, हमारा कस्टमर है, फर्ज करें इंग्लिश बिस्किट फैक्ट्री वाले हैं, और उनके पास जो है वो बिस्किट के कार्टन बने हुए रखे हुए हैं, लेकिन अभी माल सेल नहीं हुआ। सही। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा इजी होगा। रेडीमेड गारमेंट्स वाली कंपनी है, जिसने माल तैयार करके रख लिया, माल का अंबार लगा हुआ है, लेकिन वो सेल होगा रमजान में या ईद के सीजन पे। तो अब जो ईद आने में अभी 3 महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी हैं, तो इस टाइम पीरियड के लिए उनको अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने हैं, तनख्वाहें देनी है, बिजली का बिल भरना है, और दूसरे तीसरे काम है, माल इनके पास तैयार रखा हुआ है। तो ऐसे उसमें ये क्या करते हैं, तिजारा नाम की एक प्रोडक्ट है जो मुसावमा, जिसका बेस मोड ऑफ फाइनेंस जो है वो मुसावमा है। तो बैंक को ये अपना एसेट सेल आउट कर देते हैं, अपनी इन्वेंट्री सेल आउट कर देते हैं, और फिर इसको जो है वो आगे इसको प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप जो है वो बैंक इनको अपना एजेंट टू सेल बनाते हैं, और उसके बाद इसको आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है ये ओवरऑल कस्टमर की नीड को देखते हुए मोड ऑफ फाइनेंस ऑफर किया जाता है। जो कहने की बात, इसमें समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, वो ये कि कस्टमर की नीड को सामने रखते हुए रेलेवेंट या मोर सुटेबल मोड ऑफ फाइनेंस एज अ इस्लामिक फाइनेंसर, एज अ इस्लामिक बैंकर, उनको ऑफर किया जाता है कि वो अपने ज़रूरियात को, अपने मामलात को विद इन शरिया बाउंड्रीज कंप्लाई कर सके। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें कुछ हम डिस्कस करके आ चुके हैं, और कुछ मजीद करेंगे। मोड ऑफ फाइनेंसिंग, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस, टाइप्स ऑफ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, ट्रेड बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस, और फिर डेफिनेशन ऑफ मुराबाहा, और सो ऑन, स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो मोड ऑफ फाइनेंसिंग की अब स्पेसिफिकली हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। और मोड ऑफ फाइनेंसिंग ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि मेथड ऑफ financing or way of financing within Islamic boundaries. Islamic mode of financing, we can describe that the way of supplying funds that is acceptable to इस्लाम, ऐसा तरीक़ेकार जो इस्लाम के लिए विद इन शरिया बाउंड्रीज एक्सेप्टेबल हो। एक आसान तरीका तो कन्वेंशनल बैंक भी यूज़ करते हैं कि जस्ट कर्ज प्रोवाइड कर देते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीक्स में बहुत अच्छे अंदाज में इसको समझ के आ चुके हैं कि इंटरेस्ट, रिबा, सूद, ब्याज, ये जो है विद इन न सिर्फ इस्लाम बल्कि दीगर मजाहिब में भी जो है वो इसको डिस्करेज किया गया है, मना किया गया है। और इस्लाम में तो बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो सूद के हवाले से, जिसको रिबा कहा जाता है, बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि अगर रिबा, इंटरेस्ट, सूद में डील करेंगे तो ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के मुतरादिफ होगा। The Islamic mode of financing could be based on lending of money, as lending of money is could not be based on lending of money,
as lending of money is not a remunerative way of financing. Previous Islamic law of contract के अंदर हम डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ के आए हैं, उसमें रेम्यूनरेटिव और नॉन रेम्यूनरेटिव हमने पढ़े थे। तो हमारे उसमें वीक में कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा, हो जाना चाहिए कि लैंडिंग यानी कर्ज फराहम करना ये कोई रेम्यूनरेटिव वे नहीं है, ये कोई कमाने का जरिया नहीं है, ये सिर्फ एक सोशल डील है, एक सोसाइटल सोसाइटल बेनिफिट के लिए है। प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट अलाउ यूटिलाइजेशन ऑफ लोन लैंडिंग एज द मोड ऑफ अर्निंग। सही है। इंटरेस्ट का जो ममानियत है, रिबा की जो ममानियत है, वो हमें इस बात को अलाउ नहीं करती कि हम जो है वो इंटरेस्ट को लगाते हुए लोन और लैंडिंग ट्रांजैक्शन को बतौर अर्निंग के यूज करें, ये हमें अलाउ नहीं है। देयरफॉर देयर मस्ट बी अ वे ऑफ फंडिंग दैट डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कोई एलिमेंट जो इंटरेस्ट या रिबा या सूद को शामिल हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस की अगर आप बात करें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल अंडर इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंड सप्लाई। सही। इसको सबसे पहली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि कमाने के चार तरीके पड़े थे, उनमें से तीन जो है वो फंडेड बिजनेस के हैं और चौथा जो है वो नॉन फंडेड बिजनेस का है। कि आप पैसा लगा के कमाना चाहें तो ये तीन तरीकों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है या आप पैसा लगा के कमाना नहीं चाह रहे बल्कि आप बगैर पैसा लगाए कमाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास तरीक़ेकार है सर्विसेज। सही। खिदमात फराहम करें, जैसे किसी जगह एम्प्लॉयमेंट करना, जैसे किसी जगह किसी को अपनी खिदमात फराहम करना और उसके जरिए पैसे कमाना। तो वो चौथा नॉन फंडेड मेथड है। लेकिन तीन जो फंडेड मेथड हैं जिसमें आप पैसा कमाते हैं और फिर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये तीन तरीके, ट्रेड बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस यानी तिजारत की बुनियाद पे कमाना, दूसरा है रेंटल बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस यानी किराएदारी की बुनियाद पे कमाना, और तीसरा है पार्टनरशिप बेस्ड पार्टिसिपेशन यानी पार्टनरशिप बेस्ड ऑफ फाइनेंसिंग, कि पार्टनरशिप की बुनियाद पे कमाने की कोशिश करना। अच्छा, ये 10 मिनट का नोटिस आ गया है, 10 मिनट में बंद होगी। तो जैसे ही बंद होगी हमने लिंक नंबर 2 जो है उससे ज्वाइन करने की कोशिश करनी है, या तो वो ज्वाइन हो जाएगा या फिर 8:15 पे ज्वाइन होगा। लेकिन हम कोशिश फौरन 7:15 पे ज्वाइन होगा, तो ये तो फौरन होगा या बाद में होगा, जैसे ही होगा हम ज्वाइन कर लेंगे, कोशिश हम फौरन शुरू कर देंगे। अच्छा जी। ट्रेड बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस ऑलरेडी हमने पढ़ा कि एक तरीका है तिजारत का, और मजे की बात ये तरीका जो है एक ऐसा तरीका है कि जो खुद कुरान ने उस मकाम पर जहां पर सूद को बहुत स्ट्रिक्टली मना किया, वहां पर ऑल्टरनेट मेथड दिया। क्या मेथड दिया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। जो एतराज करने वाले थे, जो इश्कालात करने वाले थे, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा इन्नमल बैउ, ये बै, ये ट्रेडिंग, ये भी मिस्लुर रिबा, ये भी इंटरेस्ट की तरह है, ये भी सूद की तरह है, ये भी रिबा की तरह है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगले फकरे के अंदर, अगले पॉइंट के अंदर रिस्पॉन्स सीधा सलग दे दिया कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ताला ने ट्रेडिंग को, बै को हलाल करार दिया, व हर्रम रिबा, और सूद को हराम करार दिया। तो अब ये वाली बात जो है हमारे पास आ गई कि ट्रेड बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस शरिया कंप्लाइंट है। अब ये है क्या? अ वे ऑफ फाइनेंसिंग इन विच इस्लामिक बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंसिंग थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज एंड एसेट्स। एक ऐसा तरीका जिसमें इस्लामिक फाइनेंसर्स, जिसमें सर फहरिस्त बैंक इस्लामिक बैंक्स हैं, वो परचेज और सेल के जरिए जो है वो अपनी खिदमात फराहम करते हैं। इट हैज सिक्योर मोड्स एज दे क्रिएट डेट एंड पेबल अपॉन डेटर्स और कस्टमर्स। अच्छा, इसमें रिस्क तो होता है, क्योंकि रिस्क तो इस्लामिक फाइनेंस की तकरीबन हर ट्रांजैक्शन में मौजूद भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि अर्रिब्हु बिज़्ज़मान का जो उसूल है कि रिस्क
के साथ ही आपका प्रॉफिट लेजिटिमेट होगा, शरिया कंप्लायंट होगा, जायज होगा। तो रिस्क तो इसके अंदर है, लेकिन इसमें रिस्क, ट्रेड बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस में रिस्क निस्बतन कम पीरियड के लिए होता है, छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है। तो ये जो है ये हमें समझने की जरूरत है। इस्लामिक बैंक्स बाय अ कमोडिटी एसेट्स डायरेक्टली और थ्रू इट्स एजेंट फ्रॉम द मार्केट एंड सेल्स इट टू कस्टमर्स ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस और इंस्टॉलमेंट्स। इस्लामिक बैंक परचेज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं बाज औक़ात, और बाज औक़ात अपने एजेंट्स के थ्रू करते हैं, जैसा कि अभी हम समझेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है सेल आउट करते हैं किसको, कस्टमर्स को। तो ये वाला मेथड ऑफ फाइनेंसिंग कस्टमर्स को उनकी परचेजिंग की सपोर्ट साइड पे है। तो ये कैश में भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली डेफर्ड भी होता है और इंस्टॉलमेंट्स में भी होता है। स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट में देख लेंगे। द एजेंट में बी एन एम्प्लॉय ऑन इस्लामिक बैंक, इस्लामिक बैंक का एम्प्लॉय हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, और कस्टमर खुद भी हो सकता है, जैसा कि बिजनेस फाइनेंसिंग की अक्सर ट्रांजैक्शंस के अंदर होता है। ऑल कंडीशंस शुड बी ऑब्जर्व्ड केयरफुली इन सेल फाइनेंसिंग। ऑलरेडी हम इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं, हम इस्लामिक सेल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं। तो जब ट्रेड बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस, वी नो दैट ट्रेड बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस आर सेल्स। सो व्हेन these are sales, so we have to carefully comply the CSPP method, contract, subject matter, price, and possession as the sale contract elements. We have to consider all sale elements, four sales elements, as we already understand carefully. Initially, we can introduce four kinds of trade-based mode of financing which are very common. Currently in Islamic banking, these four are more utilizing as a trade-based mode of financing. Number one is Murabaha. We will discuss very in depth. So cost plus profit transaction, we can say Murabaha, in which both are disclosed to the buyer. So we can summarize Murabaha definition in English: cost and profit disclosure to the customer or buyer. Similarly, Musawama, a simple sale transaction in which a price is quoted to customer without any disclosure to the buyer. यानी इसमें मुसावमा के अंदर बेचने वाला अपनी प्रीवियस परचेजिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस नहीं बताता, मुराबाहा के अंदर वो अपनी कॉस्ट प्राइस प्राइस को डिस्क्लोज करता है। दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन दी नॉर्मल सेल विच इज मुसावमा एंड मुराबाहा विच इज कॉस्ट डिस्क्लोजर सेल। सलम और इस्तिस्ना को हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, तो वहीं पर इसको डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी एक इनिशियल डेफिनेशंस आपको दी जा चुकी हैं इनकी। अच्छा जी, अब ये डायग्राम जो है, जो हमारी कोर्स आउटलाइन में मेंशन थी, बुयूउल अमाना, मुराबाहा एज अ बुयूउल अमाना किस तरह है। मुराबाहा बुयूउल अमाना के अंदर इस तरह है कि इसमें बेसिकली अगर हम, ये डायग्राम आपके सामने है, इसमें देखें, एक तरफ पैसा है, मनी है, दूसरी तरफ कमोडिटी है। तो अब ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस मोटिव है, यानी ये जो है हमारे पास, जो हमने कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट दो पढ़े थे, उनमें से कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो जब कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट है ये, और इसमें दो तरह की हमारे पास टाइप्स हैं मेनली। एक कहलाती हैं बुयूउल अमाना, यानी ये ट्रस्ट बेस्ड डील्स हैं, ट्रस्ट बेस्ड ट्रेड्स हैं, कि जिसमें खरीदार या बेचने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हुए, उसकी जबान पे एतमाद करते हुए, उसकी प्रीवियस प्राइस का वो अगर कोट कर रहा है, तो उसकी एतमाद करते हुए, उसकी अमानतदारी पर, उसके ट्रस्ट पर एतमाद करते हुए वो सौदा कर रहा है। और दूसरा अनडिस्क्लोज्ड होता है, जिसमें बेचने वाले ने अपनी कॉस्ट को डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो कोई मसला ही नहीं है। सही है। तो बुयूल अमाना का मतलब ये है कि जिसमें खरीदने वाला बायर वो ट्रस्ट करते हुए, और जिसमें कॉस्ट को डिस्क्लोजर
को सामने रखते हुए खरीदारी का फैसला करता है। अब ये बुयोल अमाना, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, तीन तरह की हैं। कि कॉस्ट तो डिस्क्लोज्ड हो गई, इन तीनों में कॉस्ट डिस्क्लोज्ड है। अब कॉस्ट डिस्क्लोज जो की वो सेल प्राइस अभी जितने का बेच रहा है, जो प्रीवियसली खरीदा था उतने का ही बेच रहा है। प्रीवियसली खरीदा था मतलब कॉस्ट पे बेच रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा है। मिसाल के तौर पर गाड़ी बेचते वक्त हम ये नॉर्मली बताते हैं, भाई ये 10 लाख की ली थी, आपको भी 10 लाख की बेच रहा हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा हूँ। तो ये जो है ये तौलिया कहलाता है। ये भी बुयोल अमाना में से है। इसमें भी जो खरीदार है वो डिस्क्लोज करते हुए जो है वो आपके उस पर, आपकी बात पर, आपके एतमाद पर, आपकी बात पर एतमाद करते हुए, सेलर के ऊपर एतमाद करते हुए वो चीज खरीदना है। दूसरा है कॉस्ट अगर ग्रेट लेस देन सेल प्राइस है, यानी सेल प्राइस अभी आप बेच रहे हैं 12 लाख की और आपने खरीदी थी 10 लाख की और आपने ये बात बता भी दी, तो ये किस चीज कहलाती है? मुराबाहा, जो कि हमारा अभी आज का फोकस है। और तीसरा एक और भी सिचुएशन हो सकती है, हो गए हमसे जरा सा गिला भी सुन ले, कि कॉस्ट आपकी ज्यादा थी, बेच कम में रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी 8 लाख में बेच रहे हैं, तो ये कहलाता है वजीआ। वजीआ मतलब नुकसान में बेचना। तो इन तीनों सिचुएशंस में सेलर ने क्या किया कि अपनी कॉस्ट को डिस्क्लोज कर दिया। तो कॉस्ट को डिस्क्लोज करने की वजह से अब ये बुयोल अमाना कहलाती हैं। कल को अगर साबित हो गया किसी मरहले पे कि ये जो सेलर ने कहा था कि 10 लाख की मेरी कॉस्ट है, बाद में पता चला कि 10 नहीं, ये तो 5 लाख की इसने खरीदी थी या 8 लाख की खरीदी थी या 9 लाख की, तो जो आगे खरीदने वाला है, जिसने उसकी बात पर, सेलर की बात पे एतमाद किया था, वो इससे रिकॉर्ड्स कर सकता है, उससे मुतालबा कर सकता है, भाई तुमने मुझसे झूठ बोला था, मैंने तुम्हारी बात पे एतमाद किया था, मुझे इतने पैसे वापस दो। सही। और अनडिस्क्लोज सिंपल है, जिसमें जनरल बार्गेन सेल मुसावमा, यानी जिसमें कॉस्ट का हवाला ही ना दिया जाए, भाई ये चीज मैं बेच रहा हूँ 12 लाख की, मैंने कितने की खरीदी है मैं नहीं बता रहा, ना खरीदने वाला पूछता है, तो ये मुसावमा या जनरल बार्गेन सेल कहलाती है। तो ये जो है मरहला हम यहाँ इख्तिताम पजीर करते हैं। और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम अगले 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम ज्वाइन करते हैं लिंक 2 पे। इस लिंक की जो है वो